بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں اور ماہنامہ عبقری اپروچ شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے میرے آزمودہ تجربات عبقری کے نام۔ محترم شیخ الوزیر صاحب السلام علیکم۔ میں نے عبقری رسالے میں شائع ہونے والے ٹوٹکوں وظائف سے بہت فائدہ پایا۔ اپنے چند مشاہدات عبقری قارئین کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ عداد سے بیماریوں کا علاج۔ اگر کوئی شخص شوگر کے مرض میں مبتلا ہو اور ادویات استعمال کرنے کے باوجود اچانک شوگر کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو مریض کی دائیں کلائی پر پین یا مارکر سے بسم اللہ پوری پڑھ کر یہ اعداد لکھیں، انشاءاللہ شوگر نارمل ہو جائے گی۔ وہ اعداد یہ ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ الرجی کے لیے، اگر کسی الرجی کا مرض ہو تو وہ اپنے ناک میں صبح شام سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل ڈراپر کے ذریعے لگائے۔ اس کے علاوہ نہانے کے بعد سرسوں کے تیل کی مالش اور دہی کی لسی کا استعمال کرے۔ قد کے لیے، جن بچوں کا قد نہ بڑھا ہو انہیں دودھ کے ساتھ بادام استعمال کریں۔ اس کے علاوہ لٹکنے کا کہیں، انشاءاللہ ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ طاقت اور فٹنس کے لیے لاجواب ٹونک۔ میرے دادا جان اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ 80 سال کی عمر میں بھی صحت مند ہیں۔ ان کی صحت کا راز سادہ فطری غذاؤں کا استعمال ہے۔ وہ عبقری رسالہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ جب سے انہیں رسالہ ملا، لوگوں کو اس میں پڑھ کر ٹوٹکے وظائف بتاتے رہتے ہیں۔ وہ عبقری کا تندرستی ٹونک استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ اس میں بہت طاقتور اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب میں یہ ٹونک دودھ یا پانی سے ملا کر پیتا ہوں تو میری صحت اور طاقت بہت اچھی رہتی ہے۔ جب وہ تندرستی ٹونک گھر میں لائے تب بچے اور بڑے یہ مشروب بےحد شوق سے پیتے ہیں۔ میں FSC کر رہی ہوں اور میں خود بھی دن میں 2 مرتبہ تندرستی ٹونک پیتی ہوں۔ میری صحت لاجواب ہے۔ مصنوعی طرز زندگی اپنانے کی وجہ سے مجھے لیکوری کا مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن جب سے یہ ٹونک استعمال کر رہی ہوں میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ذہنی اور جسمانی تمام کمیاں دور ہو گئی ہیں۔ جی، اگلا ٹاپک ہے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فائدہ و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے مؤثر، ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات کا ذکر کر دوں گی کہ شوال کا چاند چڑھ چکا ہے اور ان ڈیٹوں میں ہم نے جو ہے نقش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاجت والا جو ہوتا ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یاد دہانی کروا دی گئی ہے کہ آپ لوگ بھی وہ اپنی اپنی حاجت فل کر لیں۔ 70 حاجات والا تعویذ۔ نقش عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ میرا چھوٹا بھائی تقریباً 5 سال سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی ایک بیماری کا علاج کرواتے ہیں تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اسے انفیکشن ہو گیا، جس وجہ سے ان کی بیماریوں سے دوچار ہے، اس لیے کچھ عرصہ مستقل اس کا علاج کروانا پڑے گا۔ ہمارا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جب وہ بیماری کی وجہ سے ہسپتال نہ گیا ہو۔ اتنا عرصہ مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ آخرکار ڈاکٹر نے بھی مزید علاج سے انکار کر دیا۔ ہمیں شہر کے ایک مہنگے اور بڑے ہسپتال علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ ہم میں اتنی سخت نہ تھی کہ بھائیوں کا اتنا مہنگا علاج کروا سکیں، مگر پھر بھی گھر والوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، لیکن وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ اس مرض کا بچنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹروں کی بات سن کر ہم سب گھر والے مزید پریشان اور مایوس ہو گئے۔ میں اس ہسپتال کے صحن میں بیٹھ کر ذکر اذکار کے ذریعے اللہ سے دل میں اپنے مسائل بیان کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک برقع پوش خاتون میرے پاس آئی اور مجھے ایک رسالہ ہاتھ میں تھما کر چلی گئیں۔ اس وقت میری جو کیفیت تھی، میری کسی بھی چیز کو پڑھنے یا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ جب گھر واپس آئی تو اگلے دن میں نے رسالہ کھولا تو اس کے ٹائٹل پر 70 حاجات والا نقش کے بارے میں لکھا تھا۔ میں نے والد صاحب کو رسالہ دکھایا، لیکن میرے والد نقش تعویذات کے قائل نہ تھے۔ میں نے اپنے بھائی کی نیت کر کے اگلے اسلامی ماہ کے یکم کو نقش رسالہ میں لکھی گئی ترتیب کے مطابق پور کیا۔ اس دوران اللہ سے دل میں اپنے بھائی کی زندگی کی التجائیں کی۔ اس کے علاوہ میں اور میری والدہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے بھائی کے کپڑے استری کرنے کے لیے الماری کھولی تو الماری میں ایک پرانی شاپر پر نظر پڑی۔ میں نے جب شاپر کھولا تو دیکھا اس میں کٹے ہوئے بال، ناخن اور کسی جانور کی کھوپڑی ملی۔ دراصل بھائی پر کسی نے سخت جادو کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ آئے دن بیمار رہتا تھا، لیکن ہمیں اس کی بالکل خبر نہ تھی۔ والد صاحب نے جب یہ چیزیں دیکھی تو وہ بھی نقش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مان گئے۔ اس دن کے بعد سے بھائی کے دن بدن صحت بہتر ہو رہی ہے۔ اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ میں ہر ماہ یہ نقش پور کر رہی ہوں، جس کی بہت سی برکات ہمیں مل رہی ہیں۔ جی، یہ 70 حاجات کے تعویذ اور ہر ماہ کا خاص عمل ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ وہ کب پور کرنا ہے۔ اب یہ جو خانہ نمبر 38 یعنی کہ 38 ہے، وہ شوال کو پور کرنا ہے ہم نے، تو اس کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جلد از جلد اپنی حاجات اس میں لکھیں اور دعائیں کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ چاروں طرف سیاہ بادل اور نظر بد کی وجہ سے تنگی، کالا آدمی۔ جی، یہ کچھ خواب ہوتے ہیں اور اس کے تعبیر عبقری والوں کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ خواب ہے، میں نے دیکھا کوئی کالا آدمی میرے بیٹے کے پاس آئے، وہ رو رہا ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ ایک آنکھ میں آنسو ہے۔ یہ بھی خواب میں نے دیکھا کہ بلی کے برابر کوئی جانور ہے جو کمرے میں ہے۔ تعبیر عبقری والوں کی طرف سے بتائی گئی۔ آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹا بہتری کی طرف آ رہا ہے، تاہم روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی جاری رکھیں، ہو سکے تو حسب توفیق کچھ صدقہ بھی دیتی رہیں، واللہ اعلم۔
धोखा बाजी का अंदेशा ख्वाब है। मैंने देखा मैं और मेरी खाला घर से निकल गए, जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ वहाँ मैंने मौजूद हूँ। खाला का भाई किसी को फ़ोन कर रहा है, हमारे पीछे भाग रहा है। फिर मेरी आँख खुल गई। ताबीर है और आपके मुताबिक इस बात का अंदेशा कि आपको कोई धोखाबाज या माली नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। एक तस्बीह या फीज़ू या सलामों की ज़रूर पड़े, वल्लाह आलम। सरशारी और बेखुदी ख्वाब है। मैंने देखा बहुत तेज़ रोशनियाँ हैं, मेरी अजीब सी सरशारी और बेखुदी सी कैफियत है। फिर रोशनियों में एक पुल बनता है, फिर दूसरा पुल, इसके बाद कुछ याद नहीं। ताबीर आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि आपको जल्द इंशाल्लाह परेशानियों से निजात मिल जाएगी। ताहम इसलिए गुमराह कुन आमलों से गैर शरई इलाज कराने से इज्तनाब करें। इस मकसद के लिए सूरह बकरा और माऊज़ 3 पढ़ने का एहतमाम करें। चारों तरफ स्याह बादल। ख्वाब में मैंने देखा कि छत पर खड़ा हूँ, आसमान पर गहरे बाल स्याह बादल छाने लगे हैं। फिर मेरे चारों तरफ सीमेंट रेत से बने पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे, मेरे ऊपर रेत बरसने लगी। फिर ख्वाब से मेरी आँख खुल गई। ताबीर आपके ख्वाब के मुताबिक आपको मुतबना किया गया कि इससे पहले कोई बड़ी मुसीबत, आफत या ख़तरनाक मौलिक बीमारी आपको घेरे, फौरी अल्लाह से रजू करें और अमाल की इस्लाह की फ़िक्र करें, सदका भी करें। नज़र बद की वजह से तंगी। ख्वाब है कि मेरी बहन ने ख्वाब में देखा मैंने अपने वालिद से अपने इंस्टीट्यूट के लिए लड़कियों के लिए खाना मंगवाया। वो घर के दरवाजे पर बड़ी बहन के साथ इंतज़ार कर रही है। वालिद साहब को कब खाना लाएंगे? अचानक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को मुतवज्जा करती कि तुम्हारे पास बड़ी चिपड़ी ज़ुबान निकाल कर देख रही है, लेकिन छोटी बहन देख कर नज़रअंदाज करती है। ताबीर है कि आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि आपका और आपके घर वालों का रिज़्क नज़र बद की वजह से तंगी का आने का अंदेशा है। ताहम घर में सूरह वाक़िया रोज़ाना मगरिब के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ने का एहतमाम करें। एक तस्वीर सुबह शाम बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़ें, इंशाल्लाह हिफाजत रहेगी, वल्लाह आलम। नेक्स्ट टॉपिक है भाई की गालियों से बहुत तंग थी बहन की अनोखी शिकायत। मोहतरम शक्र साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ करूँ कि आपको और आपके घर वालों को, आपकी नस्लों और सारी टीम को शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए, सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हर शय और फितने से महफूज फरमाए, आपको तमाम दिली तमन्नाएँ पूरी हों, आमीन। आज से तकरीबन 3 साल पहले आपको हज़रत जी ने हमने मुश्किलात, जादू टोनों से निजात के लिए ख़त लिखा था। आपने हमें ये आयत और ये वजीफ़ा बताया था। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसको सैकड़ों, हज़ारों, लाखों के हिसाब से रोज़ाना पढ़ें। भाई का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से परेशानी का सामना था। मेरी बहन ने इस वजीफ़े को तकरीबन 1 लाख से ऊपर पढ़ा। फिर मेरे भाई का तबादला शुरू हो गया, लेकिन आखिरी जगह पर कागजात लेकर जाने थे, तो इस दिन से जादू की वजह से मेरे भाई की ज़ुबान बंद हो गई। हमारे तबादले का काम वहीं रुक गया। हमने वजीफ़ा जारी रखा। अल्लाह ताला के फजल से आपके बताए वजीफ़े से मेरी भाई की ज़ुबान ठीक होगी, मसला भी हल हो गया। जब भी कोई मसला हो दिल में रख कर आपका रूहानी महफ़िल सुनती हूँ। महफ़िल में मज़मून कोई और चल रहा होता है, अचानक अल्लाह ताला की तरफ से हम आपकी ज़ुबान मुबारक पर जो मेरा मसला, गम, दुख, परेशानी होती है, वो आप हर जुमेरात की रूहानी महफ़िल में बयान फरमाते हैं। मसलन एक हफ़्ता सारा मैंने अपने माँ बाप को याद करके रोती रही। जुमेरात को दर्स सुना, इसमें आपने फरमाया कि किसी कोई याद आए तो एक दफ़ा कलमा पढ़कर हदिया दिया करो। मैं बहुत सारे अमाल जो आपके दर्स में बयान फरमाते हैं वो सब करती हूँ। एक बार मेरे कान में शदीद दर्द था। आपके पिछले सालों में महफ़िल और मैं अल्लाह ताला की दरख्वास्त लिखने वाला अमल सुना। ये अमल मैंने रात को किया, मेरे कानों में दर्द गायब हो गया, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि हज़रत जी की इजाज़त ज़रूर साथ होनी चाहिए। अगले दिन आपने रूहानी महफ़िल में अमल बयान फरमाया, इसकी इजाज़त भी मैं सबको दी। मेरा भाई गालियाँ बहुत देता था, मैं ऐसी गालियों से तंग थी। जुमेरात को रूहानी महफ़िल में आपने किसी की बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए या मानियों पढ़ने का फरमाया। मैंने वजीफ़ा भाई की नीयत से पढ़ना शुरू किया, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला ने अपने ख़जाना गैब से आपकी दिल में हमारी मुश्किलात, परेशानियों का हल बयान फरमा देता है। हालाँकि आपसे कितनी मीलों का सफ़र है, जो कि लाहौर तस्बीह खाने बहुत ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट टॉपिक है शौहर को मेरी नंद और जेठ ने तवीज़ पिला दी है, मुझ पर कैसे कैसे गमों के पहाड़ टूटे। आइए चंद वाक़यात पढ़िए। एक दिन मेरा जेठ आया और मेरे शौहर से कहने लगा, तुम्हारी बीवी ने मुझे तवीज़ किए, इसे बोलो कुरान पाक पर हाथ रखे और कसम उठाए। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मेरे नंद और जेठ एक बाबे के पास गए। बाबे ने इसे 9,000 और एक बकरा लिया। मेरा जेठ पहले भी मेरे शौहर को तवीज़ करवाता रहा और नंद लस्सी और दूध में घोल घोल कर मेरे शौहर को पिलाती रही। जेठ ने ना कोई हिंदू छोड़ा ना मुसलमान। बात ये है कि गैर मुस्लिमों और मुसलमानों से तवीज़ ला के शौहर को इतने पिलाए कि ये इस जेठ को की कदर करते और इसकी औलाद की भी। अब भी तवीज़ों से बाज नहीं आए। शौहर मुझे कपड़े के लिए पैसे नहीं देते, लेकिन मेरे जेठ को बाबे को देने के लिए 40,000 मेरे शौहर ने दे दिए। हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। मेरे शौहर में तबीयत मुसलसल ख़राब रहती। 3 दिन पहले तहज्जुद के लिए मैंने उठना था। अचानक मेरी टांगों में ऐसा दर्द हुआ कि जैसे किसी ने पकड़ कर टांग मरोड़ दी हो। इस दिन जब मैं सोई तो टांगें भी सो जाती थी और बाईं टांग में अब दर्द था। मेरी नस्लें ख़राब हो रही हैं, बच्चों ने केबल लगवा ली है।
बड़ा बेटा फिल्में गाने लगाता है, मना करती हूँ तो मेरी बात नहीं सुनता। इस जेठ ने एक बार बकरे का दिल लेकर इसमें तवीज़ डाल कर कब्र में दफन किए। इस वक्त आज तक लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं, अब ये शख्स बाज नहीं आ रहा। मेरे देवर ने मेरी बहन को तलाक दे दी। इतना कुछ करने के बावजूद मेरा शौहर कहते हैं कि इसके बेटे को रिश्ता देना है। ये जेठ साहब कहते हैं कि मेरी भी बेटी का रिश्ता ले लो। मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात तो पहले ख़त्म नहीं होने देते, ऊपर से रिश्तेदारी। हमारी ज़मीनें इस शख्स के पास हैं, ठेका भी ये शख्स कभी देता है कभी नहीं देता। फिर ये शख्स क्या करे? मैं पर्दा करती हूँ, लोग कहते हैं पर्दा क्यों करती है। मैं ये जो विरद करती हूँ इसकी इन्हें तकलीफ़ है। हमारी इनकी आदत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये हमारे किस तरीके से जान छोड़ने को तैयार नहीं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने इन घरों में आना जाना छोड़ दिया है। मेरे शौहर ज़बरदस्ती इन घरों में लेकर जाते हैं, हालांकि जिस देवर ने मेरी बहन को तलाक दी इसके घर भी ले जाते हैं। इसकी दूसरी बीवी से बोलने में मजबूर करते हैं। मैके वालों से भी अच्छा सलूक नहीं करते। अगर मेरे मैके वालों में से कोई आ जाए तो उनके सामने गंदी गालियाँ निकालते हैं। मैंने कभी अपने बहन भाइयों वालिद वालदा के लिए बोतल नहीं मंगवाई। घर में कुछ गोश्त वगैरह पड़ा हो तो मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं अपने मैके वालों के लिए खाना बना सकूँ। हज़रत मैं 14 साल की थी जब मेरे वालिद ने इससे मेरी शादी की थी। अब 31 साल की हो गई। जानवरों की तरह मारते हैं, हर किसी के पाँव पकड़वाते हैं। मेरी बहन को मेरे इस देवर ने अपनी माँ को अपने पाँव धोकर पानी पिलाया। अगर सारा दिन काम करके कभी बैठते तो कहते चलो बैठना नहीं है। कमरे के पंखे गर्मियों को बंद कर देते और कमरे से बाहर निकाल कर छपरे में बैठने को कहते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जुल्म ख़त्म नहीं होते। ऐसे भयानक जादू और लज्जा-खेज़ हालात से निकलने के लिए महफूज रहने का वजीफ़ा है अपनी वालों की तरफ से। सूरत इनाम की आयत नंबर 45-45 सुबह शाम 21 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दूर शिव के साथ पढ़कर अपने ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं इनका तसव्वुर करके फूंक मारें। इसके अलावा हर नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल आखिर 1 मरतबा दूर शिव के साथ या कहार पढ़ें। मज़ीद अपना और अपने शौहर और अपने बेटों का तसव्वुर करके माहाना फ़ी फ़र्द 41 रुपये सदका लाजिम करें। इस अमल के तमाम ऐसे अफराद को जिन पर ऐसे हालात उनको पढ़ने की इजाज़त है, नोट ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरी बीमारी तंज़ो मज़ाक का ज़रिया बन गई। इसको पढ़ते हैं। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। चंद माह पहले मैं अचानक से बीमार पड़ गया। इसकी वजह से मैं पूरा महीना कॉलेज ना जा सका, जिसकी वजह से पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हुआ। जब सेहत याब हुआ तो फ़ाइनल इम्तहान भी करीब आए, लेकिन मेरी तैयारी मुकम्मल ना थी। चनाचे मैंने दिन रात इम्तहान की तैयारी करना शुरू कर दी। रात के वक्त भी देर तक पढ़ता, लेकिन इस दौरान रोशनी मध्यम रखता ताकि घर के बाकी अफराद मेरी वजह से तंग ना हों। अल्लाह का शुक्र है मेरी अंत तक मेहनत का नतीजा इम्तहान ठीक हो गया। रिज़ल्ट भी बेहतरीन आया, लेकिन नामुनासिब रोशनी के मुताले की वजह से मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से सर में दर्द रहने लगा। मुझे मजबूरन ऐनक लगवानी पड़ी। मैंने ऐनक से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ ड्रॉप्स और अद्वियात का इस्तेमाल किया, मगर इनका किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना हुआ। ऐनक लगने की वजह से मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते, क्योंकि ऐनक मेरे चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं करते थे। मुझे किसी ने अपनी के ऐनक तोड़ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने आखिर कोशिश के तौर पर ऐनक तोड़ ड्रॉप्स डालना शुरू किया। जब पहली मरतबा ड्रॉप इस्तेमाल किया तो आंखों में सख्त तकलीफ महसूस हुई, लेकिन मुझे पहले भी ये बात बता दी गई थी कि ऐनक ड्रॉप्स के इस्तेमाल से आंखों से जरासीम का खात्मा होता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए तकलीफ महसूस होगी। लिहाजा मैंने इस्तेमाल जारी रखा। अल्लाह का करम हुआ कि मेरी नज़र पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। उम्मीद है जल्द ऐनक से निजात मिल जाएगी। टोटका फ़ायदे के बजाय नुकसान का ज़रिया बन गया। मैंने मैदे के अमराज का मुब्तला था। मैंने अपने यूट्यूब चैनल से आपके वीडियो का क्लिप देखा, जिसमें मैदे के अमराज से निजात के लिए 2 चम्मच इसबगोल, 1 चम्मच जैतून, 1 चुटकी कलवंजी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल देखे मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल कर चुकी थी, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने पंसार की दुकान से तमाम अज्जा मंगवाए, लेकिन इनमें इसबगोल था, इसके अंदर से नागवार बदबू आ रही थी। मैंने इसबगोल का छिलका वापस कर दिया और एक बड़ी जनरल स्टोर से इसबगोल का छिलका ख़रीद लाई। मैंने आकर मज़कूरा तरतीब के मुताबिक टोटका बनाकर इस्तेमाल किया, मगर इस टोटके से फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। मैं समझी शायद टोटका मुवाफ़िक नहीं आया, इस वजह से मसला। लेकिन जब मैंने टोटके तमाम अज्जा बगौर चेक किए तो देखा कि इसबगोल के छिलके में कुछ नमक के शक्ल के ज़रात भी मिलावट करके शामिल किए हैं। इस वजह से मुझे फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ा। मैंने खाली इसबगोल के छिलके लिए इंटरनेट पर फूड या मुख्तलिफ ब्रांड कंपनियों का विज़िट किया था। दौरान अपकरी वेबसाइट के ज़रिए मुझे मालूम हुआ कि अपकरी का अपना भी इसबगोल का छिलका है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके ज़रिए अपकरी इसबगोल मंगवाई। जब डब्बी खोली देखा तो वाकई खालिस और मिलावट से पाक दिखाई दे रहा था। अब यही छिलका इसबगोल इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे अपनी बीमारी में बहुत अफाका हुआ है। जी, उम्मीद करती हूँ जितने टॉपिक पढ़ के सुनाए आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा देंगे, और सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।